Yes, we continue our chapter, lesson 3, minerals and power resources. Our next topic is nuclear energy. Nuclear power is obtained from the energy stored in the nucleus of atoms of naturally occur radioactive elements such as uranium and thorium. These fuels undergo the process of nuclear fission in nuclear reactors and produce power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. USA एंड यूरोप जो है वो न्यूक्लियर पावर के लिए फेमस है. इन इंडिया के अंदर ये झारखंड एंड राजस्थान एंड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम के यहाँ पे भंडार है. थोरियम फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला के अंदर थोरियम एंड मोनोजाइट पाए जाते हैं अपने यहाँ पे. ठीक है. द न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया आर कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, रावतभाटा सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड केगा इन कर्नाटका. द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर आर दैट इट इज़ पॉल्यूशन फ्री. ओके, न्यूक्लियर पावर की ये एडवांटेज कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन फ्री है. Almost zero emissions. It can be established anywhere. A small amount of matter creates huge amounts of energy. The disadvantage of nuclear power are that the nuclear plants are एक्सपेंसिव. यस, ये बहुत एक्सपेंसिव है टू बिल्ड एंड मेंटेन, इनको बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए. एज दे हैव रेडियो एक्टिव रेडिएशन, द वास्ट प्रोडक्ट्स आर डेंजरस. Earthquake, tsunamis, and human errors can cause damage to the reactor, resulting in heavy loss of the life in that areas. Okay, next हमारा टॉपिक geothermal energy. The energy which is obtained from the heat. Yes, जो heat से inside the earth से पाई जाती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ एक्सट्रीमली हॉट. एट सम प्लेस दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ in the form of hot spring. This heat energy can be used to generate power. This geothermal energy is the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several centuries. The world's largest geothermal plants is in the USA, followed by New Zealand, Ireland, Philippines and Central Asia. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh, and Puga Valley in Ladakh. The advantages of geothermal energy are that it has low running cost and reduced presence of fossil fuels. It reduces global warming and pollution. The disadvantage of geothermal energy are it is not a very widespread source of energy. It can run out of steam over a period of a time. Yes, next topic is tidal energy. Tidal energy क्या है? Tidal energy that is generated from tide इज़ नॉन एज टाइडल एनर्जी. यस, टाइड को हम ज्वार भाटा कहते हैं जो समुद्र के अंदर आता है. ठीक है, उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं. दिस एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड नैरो ओपनिंग ऑफ द सी. ड्यूरिंग हाई टाइड्स द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज़ यूज टर्न टू टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. यस, जब हाई टाइड होता है तब उससे टर्बाइंस मूव करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. टाइडल फार्म्स आर ऑपरेशन इन कनाडा, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड साउथ कोरिया. इन इंडिया, टाइडल वेव प्लांट्स हैज़ बीन सेट up in Gulf of Kutch in Gujarat. The advantage of tidal energy are that is pollution free. Yes, ये pollution free है, very expensive है and inaccessible है. The disadvantage इसकी ये it can be used only where there is suitable tidal flow. Yes, जहाँ पे tidal flow है वहीं पे ये suitable है, otherwise कहीं पे नहीं है. Okay, it can be created a limited
place in coastal areas. Next topic is biogas. The organic waste such as the dead plants and animals, matter, animal dung, and kitchen waste can be conserved into uh, gaseous fuel called biogas. It can be set up as individual as well as community fuel, community level. Even human extra can be used to generate biogas. This organic waste is decomposed by bacteria in biogas disaster digester to emit biogas, which is mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is excellent fuel for lighting and cooking, and it also produces huge amount of organic manure every year. The advantage of biogas are it is produced locally, and its cost of production is negligible. This gas generated is used for cooking as well as electrifications. The vast products are a good source of natural manure. The disadvantage इसकी दी है biogas is that its production is in low quantity and it is a localized source of energy. We can see energy everywhere, but we can see that harnessing this energy is difficult as well as expensive. All of us can make a difference if we do not waste energy saved in and energy generated. We should act immediately and make energy future brighter. ओके, तो ये जो चैप्टर है ये हमारा फिनिश हो गया है. अब कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हैं वो ये हैं. आपको मैंने पहले 1 2 3 वाले क्वेश्चंस दिए थे. अब उसके अलावा ये वे क्वेश्चंस हैं, इनके पेज नंबर भी मैंने लिख रखे हैं. जैसे फोर्थ क्वेश्चन जो है वो वेयर आर मेजर कॉल रिजर्व फाउंड इन द वर्ल्ड, नेम द मेजर कंट्रीज़. ओके, ये पेज नंबर 163 पे है फोर्थ का आंसर. And name the 3 minerals zones of North America. Name the minerals found in South America. Which minerals is known as black gold and why? What are wind farms? Where are they found in India? What is geothermal energy? के पेज नंबर भी आप अच्छे से शुरू हैं, तो देखिए आप उसके अकॉर्डिंग इसे अभी मेरे साथ कीजिए. जैसे मैं अभी आपको फोर्थ वाला बता रही हूँ. वेयर आर मेजर कॉल रिजर्व फाउंड इन द वर्ल्ड, नेम द मेजर कंट्रीज. यस, इसका पेज नंबर 163 पे. यस लिसन, ये कॉल इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड इन चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड फ्रांस. ये उसका आंसर है फोर्थ का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 मिनरल्स जोन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. तो देखिए 3 मिनरल्स जोन्स आपको दे रखा है, ये आंसर है इसका. नेम द 3 मिनरल्स जोन्स का फिफ्थ का. ओके, टिक भी कर रखे हैं. ये तीनों आपको करने हैं. कैनेडियन रीजन वाला, एप्लेशियंस रीजन वाला एंड वेस्टर्न कॉरिडियल्स वाला. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिनरल्स फाउंड इन साउथ अमेरिका. यस, साउथ अमेरिका में जो मिनरल्स ये इसका नेक्स्ट आंसर है 6 का. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनियम, एस्बेस्टॉस एंड डायमंड. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, पेरू एंड कोलंबिया. ओके स्टूडेंट, ये इसका नेक्स्ट आंसर है 6 का. विच मिनरल इज़ नॉन एज ब्लैक गोल्ड एंड वाई. यस, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 164 पे. यस, पेज नंबर 164 पे इसका आंसर है ब्लैक गोल्ड के लिए. यस, ये रहा 7 का आंसर. पेट्रोलियम ऑल्सो नॉन एज ब्लैक गोल्ड इज रिसोर्स विच इज़ यूज एक्सटेंसिवली फॉर द जनरेशन ऑफ द पावर. पेट्रोलियम इज़ जनरली फाउंड इन डीप इनसाइड द अर्थ एंड ओशियन बेड्स. आप यहाँ तक करिएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विंड फार्म्स एंड वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया. यस, विंड फार्म्स क्या है और ये
तो विंड वाला जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर ये आपको मिलेगा, ये रहा विंड का। यस, ये जो 8 लिखा हुआ है मैंने, ये अनदर एक्सिस्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ विंड एनर्जी। विंड मिल्स आर फाउंड इन रोटेशन टर्बाइंस एंड विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और वेयर आर दे फाउंड इन इंडिया, तो इंडिया में ये रहा, इन इंडिया विंड फार्म्स हैव बिन एस्टेब्लिश इन राजस्थान एंड तमिलनाडु। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। ओके, व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी, ये हमें करना है। तो ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 170 पे, जियोथर्मल का। यस, ये जियोथर्मल द एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हीट दैट इनसाइड द अर्थ इज़ जियोथर्मल एनर्जी। ओके, इतना ही लिखना है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है नेम द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस ऑफ इंडिया। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है उसके बारे में बताना। तो ये हमें पेज नंबर 167 पे मिलेगा, जो न्यूक्लियर पावर की हेडिंग डली हुई है, वहीं पे इसका आंसर है। यस, ये रहा न्यूक्लियर पावर का। इसमें क्या है, नेम द न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया। तो इन इंडिया झारखंड एंड राजस्थान हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। सॉरी, इसमें स्टेशंस बताने हैं हमें, तो स्टेशंस तो यहाँ आएंगे। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस ऑफ इंडिया आर, ये कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, रावतबाटा सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। यस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 4 हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। 4 हाइडल पावर स्टेशन बताने हैं आपको इंडिया के, तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 165 पे। हाइडल पावर जो हेडिंग डली हुई है उसी में इसका आंसर है, ये रहा। तो ये आपको बताने हैं, ये हाइड्रो पावर स्टेशन बाकरा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई इज़ कॉल नॉन एज बरिड सनशाइन। तो कॉल के अंदर हमें इसका आंसर मिलेगा, वाई इज़ कॉल इज़ नॉन एज बरिड सनशाइन। तो ये लिखा हुआ है, द कॉल विच इज़ बीइंग यूज्ड टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन fern got buried under layers of earth, hence it is called refer as buried sunshine. Okay, ये 12 का आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं वो ये 3 डिस्टिंक्शन बिटवीन वाले हैं, 3, 4, 5 एंड 6 वाले। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका आपको पेज नंबर 169 और 170 पे मिलेगा। बायो गैस एंड नेचुरल गैस 168 एंड 164 पे। सोलर एंड विंड एनर्जी 165 एंड 166 एंड ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, इसका आपको मिलेगा 157 पे। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, बस क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है। यस, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, ये 157 पेज पे है, तो हम 157 पेज पे चलते हैं। यस स्टूडेंट, तो ये जो है ये ओपन कास्ट माइनिंग वाला, ये पूरा इसके अंदर आंसर आ जाएगा, ओपन कास्ट माइनिंग एंड ये नीचे आपको दे रखा है शाफ्ट माइनिंग, ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, ये दोनों लिखने हैं आपको, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी वाला जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 165 पे। तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, यस, तो देखिए सोलर एनर्जी का ये दे रखा है आपको, तो ये सोलर एनर्जी का आपको पूरा करना है। ठीक है, ये द सन गिव्स, ये पूरा यहाँ से ये आंसर है पूरा, F7 जो लिखा हुआ है यहाँ तक आएगा सोलर एनर्जी। इसके अलावा विंड एनर्जी का भी आपको पूरा दे रखा है, ये पूरा आएगा सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है बायोगैस एंड नेचुरल गैस। तो बायोगैस एंड नेचुरल गैस वो आपको मिलेगा पेज नंबर 164 और 168 पे, 164। यस,
ये देखिए, ये जो दे रखा है नेचुरल गैस का, ये नेचुरल गैस का आपको ये पूरा करना है। ओके स्टूडेंट, एंड 168 पेज पे आपको मिल जाएगा बायोगैस का। यस, ये बायोगैस का है, ये पूरा के पूरा आंसर आपको लिखना है बायोगैस का। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये 169 एंड 170 पेज पे मिलेगा आपको, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का। ओके, ये देखिए, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और ये कन्वेंशनल एनर्जी का ये मैंने टिक लगा रखा है, ये आपको करना है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ये लिखना है और ये नॉन कन्वेंशनल का लिखना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, होप सो जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो गुड हैंड राइटिंग में आपकी कॉपी में आपको दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।